Hello, my dear students. Today we are doing a very important poem, Bora Rings, for ISC class 11th and 12th. It has been taken from the textbook Reflections, and today we are going to do the word by word explanation of the poem. So, here first I'll give you the introduction of the poem, then each stanza. I'll be reading the stanza, we'll do the word meanings, then we will do the literal meanings as in the exact meaning of the whole stanza and the interpretation analysis. Then we are also going to do the literary devices of that stanza. Similarly, we'll take all the other stanzas. Okay, so let's begin quickly. Okay, so the poem Bora Ring explores the loss of Aboriginal culture. So, in Australia, there's this Aboriginal culture was there. Okay, now the poem explores the loss of this culture, the rituals, and the identity. Now, Bora ring itself symbolizes something. It symbolizes a sacred ceremonial grounds. So, I'll show you the picture of the sacred ceremonial grounds and we'll study more about them. But right now, the Bora ring is symbolizing this ceremonial ground, okay, which is now abandoned. Now, the theme is cultural displacement, colonial impact, the impact of colonization, memory, loss, and history. So let's begin. Stanza 1. The song is gone, the dance is secret with the dancers in the earth, the ritual useless, and the tribal story lost in an alien tale. So here the ritual, they are saying the ritual useless. Ritual is a ceremonial act. So here you can see there is this ceremonial act of dancing. This was a sacred dance for them. I'll explain you in the literal meaning. But here you understand that ritual is the ceremonial act. Then tribal story and the tribal story. It is the cultural history of these indigenous people. Okay. Lost in an alien tale. What is alien? Alien means foreign or belonging to colonizers here. Okay. I'm reading this again and then we will understand the meaning. The song is gone. The dance is secret with the dancers in the earth. In the earth means now they are buried in the earth. The dancers are buried in the earth. The ritual useless and the tribal story lost in an alien tale. So here the poet says that the traditional songs and dances of Aboriginal people have vanished. Those who performed them are gone and buried in the earth. Their rituals are no longer practiced and their tribal stories have disappeared, replaced by foreign culture. This is very, very important, my dear students. Please learn this word by word. All the words are important. These are the keywords that you should be using in your exam. Now, what does the poet understand by this? What this was the literal meaning. Now, the analysis. Now, Judith Wright mourns the extinction of Aboriginal culture. Mourns means when you say ना हम इसका मोर्निंग कर रहे हैं, हम रो रहे हैं इसके लिए, या हम इस जैसे कोई मर जाता है तो हम मोर्न करते हैं ना, तो सेम वे जुडिथ राइट इज मोर्निंग what he is mourning about the extinction of aboriginal culture के extinction पे वो रो रहा है. The stanza highlights cultural erasure caused by colonization. क्योंकि अब वहाँ colonization हो गया है तो there is a cultural eraser मतलब पूरा वो culture जो follow करते थे वहाँ के indigenous people वो पूरा erase हो चुका है. The word, the words song, dance, and ritual symbolizes a once living culture now silenced. ये सब जो वर्ड्स है सॉन्ग डांस रिचुअल ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? एक ऐसा कल्चर जो पहले था, वंस लिविंग कल्चर जो पहले था, जो अब साइलेंस्ड हो गया है. The alien tale suggests, what does the alien tale suggest? That the colonial narratives have overwritten the indigenous history. ये टेल क्यों कहा गया है? कहानी है ना. ये एलियन टेल से कहा गया है कि ये जो कॉलोनियल नरेटिव्स है अब दे हैव ओवर रिटर्न द इंडिजिनस हिस्ट्री. So now here the metaphor is these are the literary devices: metaphor, personification, contrast, and alliteration here.
So metaphor, the song is gone, dance is secret. This symbolizes the lost culture. Personification, here ritual is described as useless. As a person is useless, so ritual is described as useless. Contrast the tribal story versus the alien tale. And there is also alliteration, tribal story. Now, let's go to stanza 2. Only the grass stands up to mark the dancing ring. Here you can see this was the type of dancing ring. This is what is the symbolization of the poem, Bora ring. This is called a Bora ring, what you see in the picture here. So only the grass stands up to mark the dancing ring. The apple gums posture and mime a past corroboree, murmur a broken chant. Here dancing ring is the ceremonial ground. Apple gums, okay, to mark the apple gums. What are the apple gums? You can see here, okay. These are the native Australian eucalyptus trees, okay. Apple gums posture, मतलब उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, वैसा पोस्ट कर रहे हैं. एंड माइम मतलब उसको एक्टिंग कर रहे हैं उसकी. माइम मीन्स इमिटेट कर रहे हैं. अ पास्ट कोरोबरी, व्हाट इज कोरोबरी? इट इज़ एन अबोरिजिनल डांस सेरेमनी. ओके, इस तरीके से डांस सेरेमनी होती थी ऐसे सर्कल में, देख सकते हैं आप. सो these were the traditional dancers, and in this way they used to dance around this. Now see, this is an ancient picture of this ceremony. So now what they are saying, only the grass stands up to mark the dancing ring. अब सिर्फ घास रह गई है ना डांसिंग रिंग को मार्क करने के लिए. द एप्पल गम्स पोस्चर एंड माइम अ पास्ट कोरोबरी. नेटिव ऑस्ट्रेलियन यूक्लिप्टस ट्रीज जो है वो अब रह गए हैं, और उसकी कोरोबरी जो अब नहीं रहा है, अब ओरिजिनल डांस सेरेमनी वो जो नहीं रहा है उसको इमिटेट कर रहे हैं और एक ब्रोकन चांट को मर्मर कर रहे हैं. तो लेट्स रीड नाउ द एक्सप्लेनेशन. ओनली द ग्रास रिमेन्स टू शो वेयर द डांसेस वंस टुक प्लेस. ना, अब वहाँ सिर्फ ग्रास रह गई है. द apple gum trees seem to imitate the old dances of the corroboree and whisper a faint broken version of the chants. ओके, तो क्या कह रहा है, जो एप्पल गम ट्रीज है, ये जो एप्पल गम ट्रीज है, दे सीम टू इमिटेट द ओल्ड डांसेस ऑफ द कोरोबरी, है ना. जो पुराने डांसेस थे इस कोरोबरी के, मतलब ये जो सेरेमनी जो हो रही है उसके, ठीक है. और ये क्या, ये जो ट्रीज है वो विस्पर कर रहे हैं एक फेंट ब्रोकन वर्जन ऑफ द चैंट, ओके, इस डांस का. सो नेचर एक्ट एज अ सोल विटनेस. अब हम एनालाइज कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सिर्फ अब नेचर ही रह गया है. नेचर एक्ट एज अ सोल विटनेस, एक अकेला विटनेस रह गया है टू द लॉस्ट एबोरिजिनल कल्चर. राइट सजेस्ट्स दैट द लैंड रिमेंबर्स वॉट ह्यूमन्स हैव फॉरगॉटन. सिर्फ लैंड ने वो चीज़ याद रखी है जो ह्यूमन्स फॉरगेट कर चुके हैं. The trees miming the corroboree shows the deep connection between the indigenous people and their land. तो ये जब यूज़ किया है कि ये जो ट्रीज है दे आर माइमिंग द कोरोबरी शोज, ये शो करता है कि एक बहुत डीप कनेक्शन था बिटवीन दोज इंडिजिनस पीपल और उनके लैंड के बीच में. द ब्रोकन चांट, है ना, ब्रोकन चांट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फ्रेगमेंटेड कल्चरल मेमोरी. ऐसी कल्चरल मेमोरी जो अब सिर्फ फ्रेगमेंट्स में, टूटे टूटे टुकड़ों में रह गई है. द ब्रोकन चांट रिफ्लेक्ट्स फ्रेगमेंटेड, जैसे टूटे फूटे कल्चरल मेमोरी. मेमोरी मीन्स यादें. ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया स्टैंजा 2? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत अच्छे से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हैं. अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस अगर हम देखें, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, इमेजरी, मेटाफर और सिंबलिज्म, ये चारों है इस स्टैंजा में. पर्सोनिफिकेशन, जब हमने कहा कि ग्रास स्टैंड्स अप एंड ट्रीज मर्मर, मीन्स वी हैव गिवन देम we have compared it with a human being, a person. Imagery, there is a visual dancing ring. Then there is also auditory imagery, broken chant, है ना, auditory imagery है जो हम सुन सकते हैं. मेटाफर, ट्रीज माइमिंग पास्ट रिचुअल्स, दिस इज अ मेटाफर कि ट्रीज पास्ट रिचुअल्स को की मिमिक्री कर रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं. सिम्बॉलिज्म, नेचर सिम्बलाइजेस कल्चरल मेमोरी. Okay, so symbolism is also there.
Let's read stanza 3. The hunter is gone, the spear is splintered underground. The painted bodies, a dream the world breathed, sleeping and forgot. The nomad feet are still. ओके अब यहाँ स्पीयर क्या है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, मैंने एक स्पीयर ड्रॉ करके आपको दिखाया है ना। जो पुराने ज़माने जो वो ये इंडिजिनस लोग जो स्पीयर यूज़ करते थे, जो टूल यूज़ करते थे फॉर हंटिंग एंड एवरीथिंग। ओके दिस इज अ स्पीयर। तो हंटर इज गॉन ना। द स्पीयर इज स्प्लिंटर्ड, स्प्लिंटर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, ब्रोकन प्लेस टू प्लेस, है ना। इज स्प्लिंटर्ड अंडरग्राउंड, अब ज़मीन में गाड़ दिया गया है। द पेंटेड बॉडीज ना, जो मैंने अभी डांसर्स आपको दिखाए थे उनकी पेंटेड बॉडीज थी, इट वॉज अ सेरेमोनियल बॉडी पेंट। अ ड्रीम द वर्ल्ड ब्रीथ स्लीपिंग एंड फॉरगॉट, है ना। जो ब्रेथ ब्रेथ अ ड्रीम द वर्ल्ड ब्रेथ, है ना, जो ऐसा ड्रीम जो पहले वर्ल्ड की हर सांसों में था, अभी वो सो रहा है, फॉरगॉटन है ना, भूला दिया गया है। द नोमैड फीट आर स्टिल, नोमैड मतलब द वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो द हंटर्स हैव डिसअपियर्ड, देयर वेपन्स लाई ब्रोकन अंडर द अर्थ, the painted ceremonial dancers now exist only like a forgotten dream. The nomadic footsteps have stopped permanently. जो nomadic footsteps थे अब वो still है, अब वो इधर उधर नहीं जाते हैं, they have stopped permanently. तो इसका क्या एनालिसिस है? This stanza emphasizes the disappearance of an entire lifestyle. हंटिंग, बॉडी पेंटिंग सेरेमनीज एंड नोमैडिक मूवमेंट, ये जो तीन चीज़ें थी, हंटिंग, यहाँ पे तीन चीज़ें बताई गई है। पहला है हंटिंग, दूसरा है बॉडी पेंटिंग सेरेमनीज, और तीसरा है नोमैडिक मूवमेंट। ये तीनों ये जो एक टाइप का लाइफस्टाइल था, ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया है, वो इस स्टैंजा में क्लियरली बताते हैं। द आइडिया ऑफ अ फॉरगॉटन ड्रीम पावरफुली कन्वेज how the world has ignored aboriginal history. Forgotten dream का जो आइडिया इन्होंने यहाँ पे पुट किया है, द आइडिया ऑफ अ forgotten dream, दिस पावरफुली कन्वेज हाउ द वर्ल्ड हैज इग्नोर्ड द aboriginal हिस्ट्री। कैसे इस वर्ल्ड ने aboriginal हिस्ट्री को पूरी तरह से भुला दिया है। स्टिलनेस, अब क्या लास्ट वर्ड था स्टिल, है ना। स्टिलनेस रिप्लेसेस अ कल्चर, स्टिलनेस रिप्लेसेस अ कल्चर वंस फुल ऑफ मूवमेंट एंड लाइफ। अगर हम फिर से ये स्टैंजा पढ़े, देखो, द हंटर इज गॉन, द स्पीयर इज स्प्लिंटर्ड अंडरग्राउंड, द पेंटेड बॉडीज, अ ड्रीम द वर्ल्ड ब्रेथ स्लीपिंग एंड फॉरगॉट, द नोमैड फीट आर स्टिल। अब अच्छे से समझ आ गया बच्चों कि हंटर्स हमेशा के लिए डिसअपियर हो गए हैं, इनके वेपन हैं, दे आर जस्ट लाइंग ब्रोकन अंडर द अर्थ। The painted ceremonial dancers now exist only like a forgotten dream, and the nomadic footsteps have stopped permanently, and this stillness replaces a culture once which was full of movement and life. तो इसके लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है इस स्टैंजा के? इमेजरी, मेटाफर, एलिट्रेशन और सिंबलिज्म, चार चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इमेजरी है यहाँ पे क्योंकि विजुअल आप सोच पा रहे हैं, पेंटेड बॉडीज, देन टेक्टाइल इमेजरी इज देयर, स्प्लिंटर्ड स्पीयर, ओके। मेटाफर, कल्चर एज अ ड्रीम फॉरगॉटन, है ना, कल्चर को कैसे कंपेयर किया है, अ ड्रीम फॉरगॉटन। एलिट्रेशन, वर्ल्ड, इसको दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों, जैसे वह आपको करना है, ब्रीथ्ड और ब्रेथ्ड, स्लीपिंग। सिंबलिज्म, स्टिल फीट रिप्रेजेंट कल्चरल एक्सटेंशन, ओके। बच्चों प्लीज़ इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाना और इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, योर स्कूल एग्जाम्स. The keywords you have to learn, all the stanzas, please write these literary devices as well. And when you are mentioning the literary devices, you also have to mention, अगर मैंने कहा है कि एलिट्रेशन है तो आपको ये लाइन लिखनी है, अगर मैंने कहा है कि सिंबलिज्म है तो कैसे है आपको, यू हैव टू शो दैट दीज आर द लाइन्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा 4. ओनली द राइडर्स हार्ट halts at a sightless shadow, an unsaid word that fastens in the blood of the ancient curse, the fear as old as Cain. ओके, यहाँ पे sightless shadow, है ना,
द राइडर्स हार्ट हॉल्स एट अ साइटलेस शेडो, मतलब इनविजिबल प्रेजेंस ना, ऐसी प्रेजेंस जो दिख नहीं रही है. एंशंट कर्स, मतलब एंशंट कर्स जो यहाँ पे है उसका क्या मतलब है, बर्डन ऑफ हिस्टोरिकल गिल्ट है ना, एक जो बर्डन है हिस्टोरिकल गिल्ट का, उसे यहाँ एंशंट कर्स कहा गया है. what is as old as Cain? What is Cain here? It is a biblical figure, okay, which is there in the mentioned in the Bible, who committed the first murder. Okay, so चलो इसका मीनिंग समझ लेते हैं. Only the rider's heart halts at a sightless shadow, an unsaid word that fastens in the blood of the ancient curse, the fear as old as Cain. तो यहाँ जो राइडर है उसे एक मॉडर्न ऑब्जर्वर की तरह बताया गया है कि एक मॉडर्न ऑब्जर्वर फील्स अनसेटल्ड बाय एन अनसीन प्रेजेंस एंड एन अनस्पोकन मैसेज ना, वो बहुत ही उसका दिल में अस्थिरता है ना, किस चीज़ से, एक अनसीन प्रेजेंस और एक अनस्पोकन मैसेज से. अ डीप एंसेस्ट्रल फियर ग्रिप्स हिम, एक पुराना एंसेस्ट्रल फियर उसको ग्रिप कर लेता है, ठीक है. एन एंशियंट फियर एसोसिएटेड विथ गिल्ट, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को नहीं बचा पाया. गोइंग बैक टू द बिब्लिकल फिगर केन, तो इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं हम. द पोएट सजेस्ट दैट द मॉडर्न ऑस्ट्रेलियंस कैरी अ सबकॉन्शियस गिल्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर. एक उनके अंदर एक, जो आज के मॉडर्न ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके अंदर एक, उनके सबकॉन्शियस में एक गिल्ट है कि दे आर द रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजिनस कल्चर. उन्होंने अपने कल्चर को नहीं संभाला. द एंशंट कर्स सिम्बलाइजेस कलेक्टिव मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनकी भी कलेक्टिवली एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना, तो वो उसको सिम्बलाइज कर रहा है एंशंट कर्स. द रेफरेंस टू केन सिग्निफाइज रॉन्ग डूइंग, वायलेंस एंड द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिस्टोरिकल क्राइम्स. तो यहाँ पे केन का क्यों रेफरेंस दे रखा है बच्चों? मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसमें केन की पूरी स्टोरी बताई है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप ज़रूर उसको देखना. बट इतना डिटेल में अभी पोएम में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप ये समझो कि केन का रेफरेंस यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है, रॉन्ग डूइंग, वायलेंस एंड द लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल क्राइम. यहाँ क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं? बिब्लिकल एल्यूजन, मीन्स बिब्लिकल एल्यूजन का क्या मतलब है यहाँ, क्योंकि केन को रेफर किया है, रेफरेंस टू केन. सिंबलिज्म है ना, हार्ट हॉल्टिंग इज गिल्ट. इमेजरी, शेडो, अनसेड वर्ड, ये सब इमेजरी में है. देन मेटाफर, एंशंट कर्स एज इनहेरिटेड गिल्ट, दिस इज अ मेटाफर. So I hope you enjoyed learning the poem here on my video. So keep the learning always on. Write in the comment section if you want something else. Write in the comment section how did you like it. Please like it, share it with your friends, and do not forget to tap on the bell icon so that you receive all the notifications when I post the next poems. Okay, so bye bye my dear students and all the best.